So, hello, people. This is Kavita Kapoor Khalsa, and we are doing expose with a fantastic, fabulous guest from Delhi. And she is Malini Rastogi. So it sounds like, there's this show called Malini, Hello Malini, or something to do with Miss Malini. Miss Malini. Oh, yeah, this sounds like so much fun. But this is not that Malini, but yes, she is one of the very most interesting Malinis I've come across in my life. And in order to kind of introduce her, she's a coach, and she's a different kind of coach, and she also does a lot of other things like. She's done karmic reiki. She's done. She's a tarot reader. She's written articles for, that got published in UK journals. And no, that's actually called something prediction through Ramcharitra. That sounds something interesting. Secured its place in magazine published by Tarosphere Association of UK. That's very interesting. But apart from that, she's done numerology, money reiki. So if you want money in your life, you know who to connect with. Dowsing, then there is tarot divination, theta healing practitioner, and she's a bars facilitator too. So she does a lot of bars classes and brings people to light and empowers them. So I was so intrigued with her journey that I wanted to have her on my show. Plus, she's got a beautiful voice, and I hope she can sing a few lines. That'll be spontaneous. That is, if she's up for it. She's got a beautiful voice. She sings, and her daughter, she's got two daughters, and the younger one sings so cutely. It's a delight to listen to her. Well, that's about her, and let's hear it from her. What gets her into all of these things? So, first of all, thank you, Malini, for being on my show. Honored. Absolutely honored, Kavita. I'm honored too, because it's so much fun to see you, talk to you, and the way you opened up, it's beautiful. And I just want to know, what is this coaching thing? For a basic knowledge for our people to know, what is coaching? Coaching, there are three sorts of talks which we do. One is called mentoring, one is called counseling, and one is coaching. Okay. So when we talk about coaching specifically, it is all about the person with whom we are talking. Oh. That is, we called the coachee in the coaching language. One is the coach, and the person to whom we are talking, the person who is there to discuss the issues or whatever it is, that person is called coachee. Oh, okay. Okay, so it is all about the coaching. We ask questions, we explore the arenas of life, and we reach to a conclusion. And the best part is that the person who has the question also has the answer somewhere. Oh, yes. We all know it, don't we? But we don't want to admit that we know it. So what gets you into this field, and what gets you into this journey of coaching, wellness, and so many Reiki? You've done so many modalities. What gets you onto this track of healing? Well, my journey started when I was just 17. So I was co-creating with people from that time, I would say. Wow. In healing also, like I started my journey with Reiki. Okay. So in healing also, we co-create. Yeah, we do that. We meet, we discuss, and then we start to heal whatever needs to be healed. Absolutely. So that's again a part of co-creation. So after Reiki, it came tarot, and then it came a numerology, and then a lot of other modalities also. And then I got into the healing of the subconscious, which was theta healing as well as Access consciousness. Yeah. And it changed my life completely. No, that was my next question. What changed, and what was your life before you got into this, especially Access consciousness, and what changed after you got into Access consciousness? So there are two questions essentially. What changed before? I mean, what I was before Access consciousness, what that I had my own fears. To be very vulnerable with the audience, I had my own battlegrounds, okay, which I didn't choose, which was maybe I was just thrown into. Okay. And why I would say I was thrown into, because these beliefs were also not mine. Right. There are certain teachings, or there are certain principles, or what do you call sanskar, yeah, which are instilled in you. Absolutely. And because of those, a lot of battles go on in your head. Like example, right, wrong, good, bad.
But yes, what kind, if you have to explain it by an example, what would you say? How would you explain it? How would the layman know what kind of beliefs stop them? Because they don't even know that they are beliefs. Yeah. So a very small and simple example of that is that there are certain places in your life wherein you want to say no. Yeah. Wholeheartedly, the no is coming out of your body, the no is coming out of your consciousness, but somebody has told you at some point in time कि अच्छा बच्चा यही होता है, अच्छी बहू ऐसी होती है, अच्छी बेटी ऐसी होती है, तो अगर तुमने इसके अलावा कुछ भी किया तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत है। तो अच्छा बनने के चक्कर में हम अपने आप को मारते चले जाते हैं और अपने आप को छोटा बना, हम अपने आप को इतना स्क्वीज कर देते हैं कि हम एक ऐसे डब्बे में फिट होने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे अभी भी ये छोटा सा डब्बा है, पहले छोटा सा डब्बा है, थोड़ा सा ऊपर कर लो, उसमें भी आप फिट नहीं हो रहे हो। ओके, ये लो। यस, ये सही है, लेकिन बहुत सारे हमने अपने ही डब्बे बनाए हुए हैं, अच्छी बहू के, अच्छी पत्नी के, अच्छे माँ, ओ वाओ, दैट्स अ वेरी बिग वन, अच्छी माँ, यू नो। तो मतलब अगर आप प्लेट लेकर अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं तो आप अच्छी माँ हैं, और अगर आप अपने बच्चे को चूज करने की लिबर्टी दे रहे हैं कि भाई तुझे खाना है कि तुझे नहीं खाना, तेरी मर्जी, तो आप बहुत बुरी माँ हैं। एब्सोल्युटली। तो एक्सेस ने मुझे वो चॉइस दी, एक्सेस ने मुझे सिखाया कि देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड other than from the reality with which I was living, and on top of it I was considering it as my own. देखा कितना कमाल, दूसरों की रियलिटी मैं जी रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अपनी रियलिटी में जी रही हूँ और वो मेरी है ही नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो आप दूसरे की गाड़ी में बैठे हो, उसकी जर्नी पे जा रहे हो, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि ये तो आपकी जर्नी थी ही नहीं पहले दिन। ओके, तो अपनी गाड़ी आपने खुद से कैसे चलाना है वो सीखना पड़ा। बिल्कुल, जब मैंने बात सीखा तो जैसे कि गैरी अपनी वीडियो में भी बोलते हैं कि पहले 2-3 सेशंस में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। मेरे को पहले पूरे क्लास में समझ नहीं आया था क्या हो रहा है। मैं ऐसे बैरियर थे, क्या हो रहा है, ये क्या बकवास है। बट धीरे धीरे करके मुझे ये समझ में आने लगा कि मेरा रिएक्शन चीजों को लेकर चेंज हो गया है। बिल्कुल, ये तो ठीक है, जहाँ पे जो चीजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देती थी वहां पर मेरा बिल्कुल रिएक्शन ही चेंज हो गया कि ठीक है जो कर रहे हैं करने दो, कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो जब मुझे ये चीज समझ में आने लगी तो मुझे लगा कि दिस इज डिफरेंट, अंदर से this was something which was giving me a lot of expansion also, because here now I was choosing for yourself. Absolutely. नहीं, तो अंदर से जो बदलाव आता है वो अंदर से आने महसूस होने लगता है। कोई अगर मैं आपको बोलूं कि आप का एग्जाम्पल अगर कोई देना चाहो आपके क्लाइंट्स के साथ या आपकी ही जिंदगी में कि कैसे वो रिएक्शन कौन सा था, अपनी जिंदगी में या किसी दूसरे की जिंदगी के एग्जाम्पल देने की बजाय मैं एक छोटा सा चीज बताऊंगी कि आप घर में घुसे और किसी से ग्लास टूट गया। हाँ, तो एक बंदा आता है और वो कहता है अरे कैसे टूटा, ये तुम्हें पकड़ने का तरीका नहीं है, तुमने ये क्या कर दिया। और दूसरा बंदा है जो आता है और उस पर रिएक्शन देता है अरे बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और तीसरा एक्सेस नहीं, और तीसरा बंदा कहते हैं बेटा उठा दो, कोई बात नहीं, कहाँ से फेंक दो। हाँ, तो ये जो है ना कि आपके मन में दूसरे के लिए कंपैशन आया कि isn't that person hurt, वो ठीक ठाक तो है ना, और बजाय इस पे करने की कि क्या टूटा, क्योंकि टूटा तो नया आ जाएगा, लेकिन अगर किसी को चोट लग गई तो दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील। और अंदर से दूसरों के लिए कंपैशन आना, अपने लिए कंपैशन आना, चीज होती है टूटा कैसे, क्योंकि वो मेरे साथ हो चुका है, ये टूटा कैसे, अभी कांच है। तो ये जो टूटा कैसे वाला ट्रिगर था ना, ये मेरे अंदर से निकल गया था। वाओ, क्या बात है। और तो द बिगेस्ट चेंज आपके तो कौन से ऐसे टूल्स थे जो आपने यूज किए एक्सेस के, जिसकी वजह से, और अब वो टूल्स कब कहाँ यूज करते हो, कुछ ऑडियंस को बताएंगे। एक्सेस को जीते हुए मुझे 4 साल हो जाएंगे, 4 या 5 साल। और मैं क्यों बोल रही हूँ एक्सेस को जीते हुए, क्योंकि एक्सेस इज नॉट समथिंग विच यू विल अप्लाई एंड फॉरगेट, एक्सेस इज समथिंग विच यू आर लिविंग एवरी डे। Yes, totally. The first and foremost is the mantra of access. All of life comes to us with ease, joy and glory. Yeah. Once you start telling this to yourself and to the universe, you are making a conscious choice of receiving your life with total ease. Wonderful. And even problems come with ease, joy, glory. Actually, वो क्या होता है, not just the
कि ये नहीं कि खुशी वाली बातें सब कुछ आसान से आ रही है, खुश तो कोई भी ले सकता है ना खुशी वाली बातें। जब प्रॉब्लम्स है वहां पे हमारी जो हालत होती है उसमें अगर ईज जॉय ग्लोरी मिल जाए तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। प्रॉब्लम महसूस नहीं होती, प्रॉब्लम के साथ आपको उसके 100 सॉल्यूशंस और साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। हाँ क्योंकि आपने ईज जॉय और ग्लोरी सुना है, चूज किया है, तो यूनिवर्स आपको ईज तो देगा, साथ में जॉय भी दे देगा, और ग्लोरी तो देगा ही देगा। तो एक आइसक्रीम के साथ 3 आइसक्रीम, मतलब 2 आइसक्रीम और फ्री है। अब बताओ लेनी है कि नहीं लेनी। पूरा संडे है ये भी फ्लेवर है और ये भी है, वाह अच्छा है। Exactly. सो तो वही तो होता है कि एक लड़की जो बिल्कुल अपनी जिंदगी में हंसना भूल गई थी, जिसको लोग रोक रोक के पूछते थे कि हम तेरी वो पुरानी वाली हंसी देखना चाहते हैं, हाँ, वो लड़की दोबारा हंसने लगी एक्सेस में आके। तो लेकिन ये बात पे गौर करना ज्यादा जरूरी है। कई लोग इसको देख के शायद ये सोचे कि एक बार करने से हो जाता है। मुझे बताइए, आपको वो हंसी जेन्युइनली जो अंदर से आई, कईयों को टाइम लग सकता है, कईयों को शायद एक सेशन में महसूस हो, लेकिन आपका क्या जर्नी रहा है इसको लेके? मेरा जर्नी ये रहा कि पहले मैंने अपनी बाज रन करनी शुरू की। उस टाइम पे व्हेन आई हैड लर्न बार्स अप्रोक्सीमेटली 4 years बैक, तब हाँ, सेल्फ बार्स का चलन नहीं था। नहीं था लोग बिल्कुल। या तो स्वैप में जाते थे या फिर अपने बार्स किसी से जाकर प्रोफेशनली रन कराते थे। अब मेरे घर में मेरे बच्चे छोटे थे, हाँ, और मेरे घर के आसपास ऐसा कोई भी नहीं था कि जिसके पास मैं जाकर उससे स्वैप ले सकूं या उसको बोल सकूं कि आप मेरी बाज रन कर दीजिए। और दिल्ली तो में मैंने डिस्टेंस भी बहुत खुद है। ही अपने बाज रन करने शुरू किए, और साथ में मुझे एक ऑडियो जो कि एक्सिस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, अब्यूज होल्ड, हाँ जी। ठीक है, वो मैंने खरीदी। और उसको 30 बार सुनने से आपकी बॉडी में मैसिव चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपकी अब्यूज निकल जाती है आपकी बॉडी से। तो मैंने वो साथ में सुननी शुरू की, और नहीं सुन नहीं पाती थी, टाइम नहीं होता था, क्योंकि 2 घंटे की ऑडियो है, तो मैं हाँ, उसको प्ले करके छोड़ देती थी। वाह। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल पीपल कि डेन हीर जी की एक जर्नी, एक टूर ऑफ कॉन्शियसनेस है, हाँ, उसके कम से कम 250 वीडियो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑन करके जो है छोटे बस छोटे ऑन वीडियो। करके म्यूट पे चला, अगर म्यूट पे भी चलाएंगे ना तो भी वो काम करेगा। ये तो तो हाउ आप, डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? आई नो आपने नेक्स्ट टू, मैजिक मैजिक शेयर कर दिया लोगों के साथ। पता नहीं वो भी कितना मानते हैं लोग और कितना करने को तैयार होते हैं, बट द फैक्ट इज दैट वो बाहर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक की जर्नी जो है बहुत यूनिक रह चुकी है। तो मुझे बताएंगे कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 5 साल बाद आई सी माई सेल्फ एज अ CF, अरे वाह, वेरी नाइस। going to many going, I mean traveling worldwide, I would say, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? and meeting Daniel in person. ओह यस, वो तो कितने लोग हैं जो अभी चाहते हैं। फिलहाल कोरोना की वजह से बंद है तो हम ऑनलाइन मिल रहे हैं उनको रेगुलर, लेकिन बहुतों की ये चाहत है कि वो वापस आए, भारत आए, इंडिया आए, और हम वापस जैसे हम क्लासेस कर पाते थे वैसे हो यहाँ पर। एंड सारे इवन सिमोन, ब्रेंडन, गैरी बहुत अमेजिंग है उनको इन पर्सन में देखना। ऐसा लगता है कि एक एक अलग एनर्जी क्रिएट हो जाती है वहां पे। और वो ये भी नहीं कह रहे कि हमको फॉलो करो, वो कह रहे हो हमें फॉलो मत करो, खुद को देखो। So if you read the book Being You, there is a chapter in that about leadership. Okay, so that is what a true leader is, कि वो सिर्फ अपना काम करते हैं और हाँ, लोग उस काम से ही इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि उनको फॉलो करना चाहते हैं। वो कभी आके नहीं कहते कि मुझे फॉलो करो। हाँ, बिकॉज वो वेट नहीं कर रहे कि लोग उनको फॉलो करेंगे। सो दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड अ कंट्रीब्यूशन मालिनी, एंड द वे यू हैव प्रेजेंटेड इट, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने प्रेजेंट किया है। तो कुछ एक शब्द जो आप लोगों को चाहते हो कि वो याद रखें, या वो मतलब कोई भी ये वीडियो आज देख रहा है या बाद में कभी देखे, उनके लिए चंद शब्द आप क्या बोलना चाहोगे? मैं आपको सिर्फ ये कहूंगी कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, कुछ भी हो, सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए और यूनिवर्स से पूछिए, हाउ डज इट गेट्स एनी बेटर देन दिस, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। और